Hello everyone. In this video we will solve this question, and this question is a definite integral. We have to solve this definite integral. So the question is integration of x sin x by 1 plus cos square x, and the limits are 0 and pi. To solve this question we will use properties of definite integral, and we will use method of substitution to solve this question. So let's first apply the property of definite integral. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will use this property, and the property is integration of 0 to a f of x dx is equals to integration of 0 to a f of a minus x dx. एंड इस प्रॉपर्टी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. सो हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी? यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो x है दैट इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस एक्स. सो द लिमिट्स हैज टू बी फ्रॉम 0 टू a. लिमिट्स 0 टू a तक रहना है. एंड इफ इंटीग्रल इज इन दिस फॉर्म देन वी कैन रिप्लेस दिस x विथ a माइनस एक्स. ऐसा करने से इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. So in our case, a is basically pi. So we have to replace x with pi minus x. So we are going to replace x with pi minus x. Because pi is basically a. So we are going to replace x with a minus x, which is pi minus x. उससे पहले, let's represent the integral with I. So let's say I is equals to integration of 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x. So जो भी इंटीग्रल दिया था उसको हम I से रिप्रेजेंट कर लिया. Now we will apply the property, and by the property we will replace x with a minus x, which is pi minus x. So pi minus x into sine of pi minus x divided by 1 plus cos square pi minus x. So जहां पर भी x था उसको रिप्लेस कर दिया हम लोग pi minus x से. ठीक है. Now what is sin pi minus x and cos pi minus x? So sin pi minus x is basically sin x, and cos pi minus x is minus cos x. So ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. पाई माइनस एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर यहाँ पे माइनस आया है क्योंकि cos इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, एंड यहाँ पे प्लस है क्योंकि sin इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव. देयरफॉर sin पाई माइनस एक्स इज sin x एंड cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली sin x पुट कर सकता, एंड यहाँ पर वी विल पुट माइनस cos x, बट यहाँ पे स्क्वायर भी होता है. सो स्क्वायर करने पर this will become cos square x क्योंकि -1 का स्क्वायर इज +1. So if I square this on both side मेरे को मिलेगा cos square x, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, इसीलिए इसका स्क्वायर इज cos square x. So sin pi minus x की जगह पे हम sin x पुट करेगा, एंड cos square pi minus x की जगह पर हम cos square x पुट कर लेगा. So the integration will become I is equals to integration of 0 to pi minus x sin x divided by 1 plus cos square x dx. So यहां पर sin x पुट कर लिया एंड यहां पर cos square x पुट कर लिया. ठीक है. Now we will represent this equation as equation number 2 and this equation as equation number 1. So जो ओरिजिनल इंटीग्रल था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेगा. So इसको हम रिप्रेजेंट करेगा विद इक्वेशन नंबर 2. Now we have to add these two equation. ये दोनों को ऐड करना है. Why we are adding these two equation? ऐड करने पर ये जो x है ये एलिमिनेट हो जाएगा, एंड x को एलिमिनेट करने के बाद we can use substitution method to solve this question. So now we will add these two equations. So we will add equation number 1 and equation number 2. So we will get 2i, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने पर I will get i plus i which is 2i. इसीलिए हम यहाँ पे 2i लिख लिया. राइट हैंड साइड में दोनों इंटीग्रल को ऐड करना है. सो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में था 0 to pi x sin x by 1 plus cos square x, एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड में था 0 to pi minus x sin x by 1 plus cos square x. नाउ वी विल ऐड दीज टू फंक्शन, क्योंकि दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, दैट मीन्स वी कैन ऐड दीज टू फंक्शंस. सो ऐड करने पर बेसिकली आई विल गेट 0 to pi x sin x, एंड यू कैन सी ये दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, विच इज 1 plus cos square x. सो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकता. सो न्यूमरेटर क्या है? x sin x
प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स. सो एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स. एंड डिनोमिनेटर क्या है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. यह है डिनोमिनेटर. इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकता by multiplying this sin x inside the bracket. So I will get pi sin x minus x sin x. So equals to integration 0 to pi x sin x plus pi sin x minus x sin x divided by 1 plus cos square x dx. Now ये जो x sin x है ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों. So x sin x कैंसिल हो गया. रिमेनिंग क्या है? pi sin x by 1 plus cos square x. So 2y is equals to integration of 0 to pi sin x divided by 1 plus cos square x. Now यहाँ पे जो पाई है इसको हम बाहर निकाल सकता. So this will become 2y is equals to pi into 0 to pi sin x by 1 plus cos square x. पाई कांस्टेंट था इसीलिए हम पाई को बाहर निकाल दिया. अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि वी कैन क्लियरली सी ये जो cos x है अगर इसको हम t एज्यूम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x होता है. एंड यहाँ पे ऑलरेडी साइन x है. सो बाय सब्स्टिट्यूशन आई कैन रिड्यूस दिस फंक्शन. So let's assume t equals to cos x. And what is derivative of t with respect to x? Derivative of t with respect to x will be minus sin x. क्योंकि derivative of cos x is minus sin x. From here I can find dx into sin x. क्योंकि dx को मैं मल्टीप्लाई कर सकता. So this will become dt equals to minus sin x dx. And sin x dx will be minus dt. क्योंकि माइनस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकता एंड माइनस डी टी बन जाएगा ये. सो साइनस डी एस का जगह हम पुट करेगा माइनस डी टी एंड कॉस का जगह हम पुट करेगा टी. नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग विथ टी दिस फंक्शन विल बिकम फंक्शन ऑफ टी. देयरफॉर वी हैव टू चेंज दिस लिमिट्स. क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये क्या है? बेसिकली ये वैल्यूज ऑफ एक्स है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यूज ऑफ एक्स टू वैल्यूज ऑफ टी क्योंकि पूरा फंक्शन टी का फॉर्म में बनता है. सो लिमिट्स को भी टी का फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर टी का वैल्यूज में कन्वर्ट करना है. सो टू ट्रांसफॉर्म दिस लिमिट्स जो भी लिमिट्स है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है. फर्स्ट x इक्वल टू 0 पुट करना है एंड t का वैल्यू फाइंड आउट करना है. उसके बाद x इक्वल टू पाई पुट करना है एंड देन t का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ऐसे लिमिट्स को चेंज करना है. सो फर्स्ट लिमिट इज x इक्वल टू 0 विच इज द लोअर लिमिट. ठीक है, ये है लोअर लिमिट. इसको पुट करना है इस इक्वेशन में. सो दिस विल बिकम t इक्वल्स टू cos 0 एंड cos 0 इज बेसिकली 1. नेक्स्ट अपर लिमिट इज पाई. सो ये है अपर लिमिट पाई. अब इसको पुट करना है इस इक्वेशन में. यू विल गेट t इक्वल्स टू cos पाई एंड cos पाई इज बेसिकली माइनस 1. सो x इक्वल टू 0 की जगह पर वी हैव टू पुट t इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू पाई की जगह पर वी हैव टू पुट t इक्वल टू माइनस 1. सो द इंटीग्रेशन विल बिकम 2i is equals to pi into integration of 1 to minus 1 minus dt divided by 1 plus t square. यहां पर साइनस ds की जगह पर माइनस dt पुट किया. ठीक है, देन cos की जगह पर t पुट किया. ठीक है, इस t को यहां पुट कर लिया एंड उसके बाद x इक्वल टू 0 की जगह पर t इक्वल टू 1 पुट किया एंड x इक्वल टू पाई की जगह पर t इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लिया. नाउ यहां पे जो माइनस 1 इसको हम बाहर निकाल सकता. सो दिस विल बिकम 2y is equals to minus pi integration of 1 to minus 1 dt by 1 plus t square. Now we know integration of 1 by 1 plus x square. Integration of 1 by 1 plus x square with respect to x is tan inverse x. Therefore, integration of 1 by 1 plus t square with respect to t will be tan inverse t. Now, minus pi into इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan inverse t. And the limits क्या है? 1 to minus 1. So 1 to minus 1. Now सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है, देन लोअर लिमिट पुट करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 2i था. सो 2i is equals to minus pi. अपर लिमिट पुट करने पर you will get tan inverse minus 1. Then minus, then we have to put the lower limit which is 1. सो अपर लिमिट क्या है? माइनस 1 है. अगर माइनस 1 पुट करते हैं हम t की जगह पर आई विल गेट tan inverse minus 1. देन माइनस, देन उसके बाद क्या करना है? लोअर लिमिट पुट करने विच इज 1. 1 पुट करने पर आई विल गेट tan inverse 1. सो बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse minus 1. सो tan inverse minus 1, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है tan inverse minus x का. tan inverse minus x is minus tan inverse x. उसी तरह tan inverse minus 1 will be minus tan inverse 1 and tan inverse 1 is pi by 4 क्योंकि
tan pi by 4 is 1, therefore tan inverse 1 is pi by 4. So minus pi by 4 is the value of tan inverse minus 1. एंड यहां पर क्या आएगा, यहां पे डायरेक्ट पाई बाई 4 आएगा क्योंकि tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4. सो माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4. tan इनवर्स minus 1 is minus pi by 4 minus and tan inverse 1 is pi by 4. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2i है. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस minus 1 इनसाइड, ये सब प्लस बन जाएगा. सो पाई इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4. So 45 degree plus 45 degree is 90 degree. So this will become pi by 2. So pi into pi by 2. Left hand side में क्या है, 2i है and this will become pi square by 2. And इस 2 को multiply करने पर I will get pi square by 4. So I is basically pi square by 4. So जो given integral था उसका आंसर है pi square by 4. So आंसर है pi square by 4. So this is how you solve the given definite integral. So ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था which was based on properties of definite integral, जिसमें substitution method का भी यूज करना पड़ा. So this question was previously asked in CBSE exam and ये क्वेश्चन NCERT बुक में भी दिया हुआ है. So this is it for the video. We will solve more questions in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.